Assalamu alaikum dear student, hope you all are fine. Today I am going to explain exercise number 2a, question number 5, and chapter is linear equation. Here we have a question number 5, that is solve the following equation. We have a first part, that is 1 over 3 x is equal to 7. Solution is x is equal to 7 multiplied by 3, x is equal to 21. How 3 is comes here. If you see here, we have a 3 in division, like 1 over 3. So if we convert 3 in this side, so 3 change into a multiplication. So our answer is x is equal to 21. Now we have a part B, that is 3 over 4 x is equal to minus 6. Solution is x is equal to minus 6 multiplied 4 over 3. If you can see, 3 is in multiplication, and if we convert our 3 in this side, so our 3 converted into the division, and our 4 is in division. If we convert our 4 in this side, so our 4 convert into the multiplication. And in next step you can see x is equal to minus 24 over 3. If you multiply minus 6 multiplied by 4, then we get 24 and 3 as it is. If you cancel these two values, then we get 8, like this. X is equal to minus 8. Now we have a part D, that is y divided by 4 minus 8 is equal to minus 2. Our solution is y over 4 is equal to minus 2 plus 8. Now here आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है. वेरिएबल बाकी दो में हमारे पास x था, यहाँ पर y है. सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करनी है. We find the value of y. If we convert this minus 8 into next or opposite side, like that, our minus convert into the plus, so we get minus 2 plus 8. In next step, y divided by 4 is equal to 6. If you solve these values, like plus minus is minus, so we get 6. Okay, now in next step, this 4. Okay, now we solve this 4. In next step, 4 is equal to 6 multiplied by 4. If we see, in this step 4 is dividing with y. If we convert into the next side, our 4 is multiplying with 6. So we get the answer of y, that is y is equal to 24. Now we have a question number 6, that is solve the following equation. We have a part B, that is 3 over 5 x is equal to 1 over 2 x plus 1 over 2. Solution is 3 over 5 x is equal to x divided by 2 plus 1 over 2. If you see here in this step, हमारे पास यहाँ पर 1 over 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ. अगर हम लोग अपने x को मल्टीप्लाई कर दें इस 1 के साथ, तो हमारे पास x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, एंड प्लस 1 over 2 एज इट इज़. फिर अगर आप लोग देखें, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, दरमियान में प्लस है. अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं. ओके, नाउ सी हेयर 3 over 5 x is equal to x plus 1 divided by 2. ये स्टेप किस तरह हुआ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम हो, तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं, और क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, तो ये 2 हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है. अगर हम इसको इस तरफ कन्वर्ट कर दे, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. नाउ वी हैव अ स्टेप लाइक दैट, 2 multiplied by 3 over 5 multiplied by x is equal to x plus 1. When we solve this step, 2 3s are 6 divided by 5, and this x, if we convert our this x in this side, so our x is converted into the division, so we get this step. Okay, now if you can see, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, दरमियान में प्लस था. अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ फ्रैक्शन तो है, बट दरमियान में क्या है, इज इक्वल का साइन है.
जब इज इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लाइक दैट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी x प्लस 1 की वैल्यू के साथ। नाउ फर्दर वी हैव लाइक 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, अगर आप पीछे स्टेप में देखें तो 5 यहाँ पर ब्रैकेट है, इट मीन 5 हमारे साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो वी गेट दिस इक्वेशन लाइक 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 5। नाउ अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो वेरिएबल के साथ है और ये वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ है, सिर्फ 5 हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम अपने 5 को उठाकर इस तरफ ले आए तो 5 यहाँ पर प्लस के साथ है, यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साथ, लाइक दैट। ओके, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। जब हम 6 को माइनस करेंगे 5 में से वी गेट x and is equal to 5 as it is. Okay, now we have a next question, that is again question number 7. Solve the following equation. We have a part B, that is 12 divided by y minus 1 is equal to 2/3. Solution is, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, solution is 12 is equal to 2/3 multiply y minus 1. Okay, now if you see this y minus 1 is dividing with 12. If we convert into the opposite side, then we get this step. Now in next step we have a 12 is equal to 2 multiply y minus 1 dividing by 3. How we get this answer? If we multiply 2 in this equation, then we get this value. If you can see over here we have a 3. यहाँ पर 3 फिर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर इक्वल के मैं इस साइड पे लेकर आऊँगी 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड आवर दिस वैल्यू इज रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36 इज इक्वल एज इट इज 2y माइनस 2. इफ वी मल्टीप्लाई 2 with y and 2 with minus y, then we get this value. Now over here we have a minus 2 is constant. If we convert our minus 2 in this side, so we get this plus 2. Okay, because जब हम चेंज करते हैं अपनी साइड तो हमारा साइन चेंज होता है. Okay, then 2y is as it is. If we plus 36 plus 2, so we get 38 is equal to 2y. Next, ओके अब यहाँ पर आप लोग देखें अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई विद y. इफ वी कन्वर्ट आवर 2 इन दिस साइड, ओके, देन वी गेट दिस स्टेप. 2 वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया. 2 1 2, 2 19 38 इज इक्वल टू y एज इट इज. 19 इज इक्वल टू y और आप लोग y इज इक्वल टू 19 भी लिख सकते हैं. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, वी हैव अ पार्ट बी. 5 minus 3x is equal to minus 6x plus 2. We have a solution, that is 5 minus 3x is equal to minus 6x minus 12. Okay, how we get these values? If we multiply our minus 6 into the x, then we get minus 6x. If we multiplied our minus 6 into the 2, then we get minus 12. Okay, अगर आप लोग इस स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट है, माइनस 3x वेरिएबल है. इक्वल के इस साइड पे देखें माइनस 6x वेरिएबल के साथ है और माइनस 12 कांस्टेंट है. हमने कोशिश करनी है कि अपने वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को साथ सॉल्व करना है और कांस्टेंट वाली को साथ सॉल्व करना है. लाइक दैट इन दिस स्टेप, लाइक 5 प्लस 12 माइनस 3x, ओके, इज इक्वल टू माइनस 6x. ये वाला जो 12 है इसको कन्वर्ट करेंगे हम इस साइड पे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में. ओके, देन इफ वी सॉल्व दीज टू वैल्यूज, देन वी गेट 17 माइनस 3x सेम एज इट इज इक्वल सेम माइनस 6x सेम. ओके, नाउ यहाँ पर आप लोग अगर देखें माइनस 3x यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे प्लस हो जाएगा. हमने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 के साथ वेरिएबल था. ओके, इस वजह से कि 6 और 3 आपस में सॉल्व हो सकते हैं.
17 एज इट इज इक्वल एज इट इज माइनस प्लस माइनस इज माइनस 3x एज इट इज। यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस पुट किया। इन नेक्स्ट स्टेप इफ यू सी, यहाँ पर 3 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है विद x के साथ, इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन हमारे साथ एज इट इज रहेगा। ओके, इज इक्वल टू x। आप लोगों का आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। इफ अगर आप लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है, सो वी हैव अ दिस मेथड, डिवीजन मेथड। 17 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 2 इज रिमाइंडर। हम लोग इसको लिखने का तरीका होता है, हमेशा हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। 5 3 की जगह आएगा, 3 2 की जगह आएगा और 2 5 की जगह आएगा, लाइक दैट। x is equal to -5 2/3. In next we have a worksheet and that is your home. Thank you student for listening.